हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? फाइन, ओके। सो दिस इज योर mentor Rajesh Nagdive, and now we have come to the last lecture officially of probability. That is, we will discuss mean, variance and SD of binomial distribution, right? So note down the topic. That is mean, variance and SD of binomial distribution, right? तो कंसेप्चुअली जो कैरिकुलम होता है प्रोबेबिलिटी का, उसमें ये अब लास्ट है। उसके बाद में आप डीपीपी कर सकते हैं, आपके एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका कोई डाउट्स हो तो उसके ऊपर अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज लास्ट लेक्चर फॉर दिस प्रोबेबिलिटी, राइट। सी, there are only three formulas. Mean is given by NP. Second, variance is given by NPQ. And third, SD of course we know, square root of variance, that is square root of NPQ. इतने ही फॉर्मूलेज आपको यूज करना है, ओनली थ्री फॉर्मूलाज. The mean is NP, variance is NPQ, and SD is square root of variance. Now, of course, in the binomial distribution, we know what is N, what is P, and what is Q, right? So, N is number of trials. Fine. P is probability of success. And of course, Q is probability of failure. ठीक है. N is the number of trials, P is the probability of success, Q is the probability of failure. ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है. ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी तो मीन, वेरिएंस एंड एसडी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. नोट इट. फाइन. अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम चेकआउट करते हैं. A die tossed thrice. A die is tossed thrice, right? A success is getting 1 or 6. A success is getting 1 or 6 on a toss. Find its mean and variance. Find its mean and variance. ठीक है. तो मीन और वेरिएंस का ये फॉर्मूला है आपके पास में, एनपी मीन के लिए और एनपीक्यू वेरिएंस के लिए. एंड ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड आउट एसडी एज वेल. So the dice tossed thrice, that means n equal to 3. Fine. A success is getting 1 or 6. So P, that is the probability of success, getting 1 or 6, that is 2 by 6. Fine. 1 by 3. And Q is 2 by 3. And here is mean. What is mean? Mean is n into P. N is 3, P is 1 by 3, that is equal to 1. And now variance. Variance is NPQ. NP already we have find out, that is 1 into Q, that is 2 by 3. Finally 2 by 3. So 1 and 2 by 3. These are the answers, mean and variance. And of course square root of variance will give SD, right? तो SD क्या हो जाएगा? SD will be square root of 2 by 3. बस इतना ही कुछ है.
और कुछ खास नहीं करना पड़ता इसमें, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ कम टू द सेकंड वन, नोट कर लीजिए। So the second one is in a binomial distribution, the probability of getting a success is 1 by 4 and SD is 3. Find its mean. क्या क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, एस डी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपको मीन निकालना है। The probability of getting a success is 1 by 4 and already given SD is 3. SD is square root of NPQ, that is 3. So therefore NPQ equal to 9, right? So P is 1 by 4, automatically Q equal to 3 by 4. So find N. N is 9 upon PQ. So 9, 1 by 4 into 3 by 4, with 3, that will be 3 into 16, that is 48. So N is 48, right? Hence we can find out the mean. What is mean? Is NP, 48 into P, 1 by 4. So mean is 12. नोट कर लीजिए, मीन इज 12. फाइव, थर्ड क्वेश्चन, a pair of dice is thrown, a pair of dice is thrown 200 times, right? If getting a sum of 9, if getting a sum of 9 is a success, find the mean and variance of number of success. Okay. So look at here, a pair of dice is thrown 200 times, that means N is 200. If getting a sum of 9 is a success, sum of 9's total outcomes 36 होते हैं, और sum of 9 1 से 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 2 से 6 का नहीं बनेगा, 3 6, then 4 5, then 5 4, then 6 3. So these are the 4 outcomes which favors to the event getting sum 9, right? Total number of outcomes when a pair of dice is thrown is 36. Therefore P, the probability of success, is given by 4 by 36, that is 1 by 9, and thereby Q is 8 by 9, right? So you can find out now mean. Mean is NP, that is 200 into 1 by 9, simply 200 by 9, and variance is NPQ. NP already we have find out, 200 by 9, and Q is
8/9, तो 1600/81. And of course SD we can also find out. Square root of 1600/81, 40/9, right? ओके, तो ये हो जाएगा 40/9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन आपने किए. और देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर. सो एनपी इज गिवन, मीन एज 10 एंड वेरिएंस, मीन दिया हुआ और वेरिएंस दिया हुआ है. एनपी क्यू है 5/3. ठीक है, ओके फाइन. वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो पहले इसको आइडेंटिफाई करिए. ये क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यू डोंट नो n. ठीक है, पहले n निकालोगे और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये सब करते बैठोगे. तो अब समझ में आ गया होगा कि ये एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस. ठीक है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, दैट इज 1 माइनस क्यू की पावर n. डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट है. सो n एंड q की वैल्यू निकालना है फाइनली. तो n और q की वैल्यू निकालते हैं. q की यहाँ से निकल जाएगी, np इतना है, तो इधर आ जाते हैं. तो q की वैल्यू हो जाएगी 5/3 np. 5/3 np is how much? 10. So therefore 1/6. 1/6 आ जाएगा q. अब हमको क्या निकालना है? n. ठीक है सर. तो 1/6 ये है, तो p कितना हो जाएगा? 5/6. ठीक है, ओके. अब यहां से हमने n निकाल लेना है. n इक्वल टू 10/p, दैट इज 10/5 इंटू 6. n इक्वल टू 12 आ जाएगा. ठीक है, n इक्वल टू कितना? 12. अब इस n का वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये आंसर आ गया 1 माइनस क्यू कितना है? 1/6. 1/6 की पावर 12, ये आंसर आएगा. 1 माइनस 1/6 की पावर 12 इज योर आंसर. राइट, नोट इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं. So this is our question 5th. For a binomial distribution, if n equal to 5, probability of x equal to 1 equal to 8 times probability of x equal to 3, then p. अब थोड़ा सा केयर करेंगे. देखिए, ये p जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1. तो वो प्रोबेबिलिटी का p और ये जो p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, उसमें प्रॉपरली आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू 8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3. फाइन. n इज 5, तो दिस इज 5c1, करेक्ट है. फाइन, 5c1. तो q की पावर आ जाएगी 4 और p की पावर 1, ये 8, और ये 5c3 हो जाएगा, q की पावर 2 और p की पावर 3. ठीक है, 5c1 5 हो जाता है, करेक्ट है. यहां से क्यू स्क्वेयर, तो इधर बचेगा क्यू स्क्वेयर. ये p से इधर, तो इधर बचेगा p स्क्वेयर. ये 8, ये 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कितना बच गया इधर? p स्क्वेयर. एक p कट गया, p स्क्वेयर, करेक्ट है. ठीक है, ओके. अब कैलकुलेट करते हैं. तो ये तो हो जाएगा 5q स्क्वेयर 8 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 2,
और ये पी स्क्वेयर, तो 5 से 5 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 16 पी स्क्वेयर। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है पी की, तो क्यू को पी के टर्म्स में लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 16 पी स्क्वेयर, 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वेयर 16 पी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 पी स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल। 15 पी स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा 15 पी स्क्वेयर प्लस 5p माइनस 3p माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 5p बाहर ले लीजिए, 3p प्लस 1 यहाँ से माइनस 1 बाहर ले लीजिए, 3p प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइन। तो एक फैक्टर बना 5p माइनस 1 और दूसरा बना 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से p इक्वल टू 1/5 या p इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो p इक्वल टू 1/5 ये एक्सेप्ट होगा, करेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते। Okay, this is the question. If the mean and variance of a binomial variate x are 2 and 1, so NP mean is 2, variance मतलब NPQ is 1, यहाँ दोनों में से Q मिल जाता है, Q हो जाएगा 1/2, तो देयरफॉर P इक्वल टू भी आ गया 1/2, करेक्ट है। NP 2 है, NPQ 1 है, वेरियंस, so we can find out the Q 1/2, P 1/2, and of course now we can find out the N as well. So therefore N equal to 2/P, that is 2/1/2, that is equal to 4. So N is 4, fine. अब जो क्वेश्चन बोलता है इसको देखिए, then the probability that x takes the value at most, इसको अंडरलाइन करिए। So we have to find out the probability that x takes the value at most 3. At most 3 means कौन कौन से एक्सेप्टेबल होंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, यहाँ तक के सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, 3 के आगे एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आप क्या करो, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए। कोई अल्टरनेट तरीका भी है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, तो जो फेवर नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको वो प्रोबेबिलिटी व्हेन x टेक्स द वैल्यू 4, ये फेवर नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ दी जो प्रोबेबिलिटीज है वो फेवर करेगी, करेक्ट है कि नहीं। तो इसीलिए हम डायरेक्टली ये निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज एट मोस्ट 3, yes, takes the value, x takes the value at most 3 equal to 1 minus probability of x equal to 4. So 1 minus 4c4, ठीक है, 4c4, q की पावर 0 और p की पावर 4, so 1 minus ये भी 1, ये p की पावर 4, 1 minus 1/2 की पावर 4, 1 minus 1/16, 15/16. So dear students, the answer is 15/16, right? अब ऐसे इसमें और कुछ खास क्वेश्चंस दिए नहीं रहेंगे, तो कुछ नहीं है, फिर बाकी सब एज इट इज क्वेश्चंस है, डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है।
So fine, here we have finished the mean variance in SD of binomial distribution. Okay, thank you for watching.